Hello everyone, welcome back to my YouTube channel PhD Digital Maths. So today we are going to solve second exercise of arithmetic progression from NCERT 5.2. Exercise number is 5.2 and 5.1 आपको ऊपर I button पे आपको मिल जाएगा. जिन्होंने देखा नहीं है, you can go and check there. So let's start today's session. With the exercise 5.2. First question, fill in the blanks in the following table given that A is the first term. A first term है. D is the common difference. Okay. Next is N is equal to number of terms, and N is equal to n number of terms in of an AP is AN. That means nth term में कौन सा term है, right? So formula आपका A plus N minus 1 D. This is the formula of finding AN. AN is the nth term और N is the number of terms. दोनों में बहुत difference है. देखो बेटा, ये आपको N number of terms, जैसे कि आपको 8th term, 7th term, 6th term, ऐसे number of terms अगर आया वहां पे then that is N. But value अगर आ जाता है वो N number of terms का then that is AN. So first हम लोग चेक करते हैं, ये फॉर्मूला वैसे ही रखेंगे and we will continue solving. ये भी थोड़ा लिख लेती हूँ. फर्स्ट टर्म, ये एंटायर टेबल के लिए हमें यही यूज करना है फॉर्मूला. सो वी विल कीप लाइक दिस. क्वेश्चन नंबर 1 का A is given, D is given, N is given, AN. So AN फाइंडिंग का सेम फॉर्मूला है A plus N minus 1 D. So A की जगह पे 7 plus N is 8 minus 1 multiplied by 3. D is given. So 7 into 7 multiplied by 7 plus, this is not into, 7 plus 7 multiplied by 3. So 7 plus 21, that is you will get 28. Okay, 28 your answer. So यहाँ पे आपका 28 आएगा. Second bit, A is given minus 18, D is missing here, N is given, AN is given. So just same formula पे put करेंगे, जो जो वैल्यू हमारे पास है वो वैल्यूज डाल के जाएंगे. So AN is given यहाँ पे 0, A is given minus 18 plus N is given, that is 10 minus 1D. So 0 is equal to minus 18 plus this is 9D. So minus 18 आपका 18 हो जाएगा, 9D. So 18 upon 9, that is D. So D का वैल्यू क्या आया आपका 2. This is AN का. So D का वैल्यू आपका 2 आएगा. Okay. Third bit, A is missing here. Same formula, AN is equal to A plus N minus 1D. AN कितना दिया है थर्ड में, -5. A is missing here plus N is given 18 minus 1 multiplied by -3. So this will be your -5 is equal to A plus 18 minus 1, 17. 17 threes are आपको -51. Yes, -51. So -5 is equal to A minus 51. So -5 plus 51 is equal to A. So आपको आंसर मिलेगा 46. 46 is equal to A. So this is the 46. Now question number 4 कर देंगे. ये इरेज कर देती हूँ, आप लोग भी साइमल्टेनियसली कर लो आपके नोटबुक में. So question number 4th bit is N is missing.
A is given, D is given, and AN also given. N is missing there. Write down question number 4. AN is equal to A plus N minus 1D. AN is given 3.6 is equal to A is given minus 18.9 plus N minus D. N is missing, so N minus 1 as it is रखेंगे, D की जगह पे 2.5 डालेंगे. Okay, so this is 3.6, ये minus 18.9, this will be plus 18.9 is equal to 2.5 N minus 2.5. So ऐसे, हाँ, और else you can directly ना divide, तो हम लोग divide कर देते हैं, N minus 1 वैसे ही रहने दो. So फिर से दो बार क्यों कॉमन लेना. चलो ये ऐड करते हैं, ये ऐड करेंगे तो 22.5 आएगा. Okay, 22.5 is equal to N minus 1 into 2.5. Now 22.5 divided by 2.5 is equal to N minus 1. So आपको ये आंसर आएगा 2 कितना 25 9s are करेंगे तो 45 5 4 18. Yes, 9s are. So this will be your 9 is equal to N minus 1. So 9 plus 1 is equal to N. That means 10 is equal to N. So यहाँ पे आपका आंसर 10 आएगा. N is equal to 10. Question number 5. 3.5a, D is 0, N is 10.5 है या 105 है. 105 AN निकालना है. So formula AN is equal to A plus N minus 1D. So A की जगह पे 3.5 plus N is 105 minus 1D is 0. ठीक है. यहाँ पे anything multiplied with 0 you will get 0 only. So answer is 3.5. So this is 3.5 the answer. AN is equal to 3.5 because D 0 है. D किसी के साथ भी multiply करो 3.5 ही आएगा. Question number 2. Choose the correct choice in the following and justify. Okay, question number 2 का first bit. 30th term of AP. AP क्या दिया है? AP दिया है 10, 7, 4, so on. And 30th term, that means ये 30 क्या है? N is equal to 30. आपको फिर से बता रही हूँ, जब ऐसे TH 30th नंबर का, ठीक है, सो आपको जब ऑर्डिनल नंबर्स दिखते हैं, सो दैट इज कॉल्ड N. दिस इज ऑर्डिनल नंबर. 30th, सेकेंड, फर्स्ट, ये सब ऑर्डिनल नंबर्स है. तो ऑर्डिनल नंबर्स जब आपको वहां पे दिखा, देन आंख बंद करके वहां पे बोल सकते हैं कि N is equal to 30. सो A is equal to 10 एंड D is equal to क्या करना है? AP है. सो हम लोग क्या करेंगे? टर्म 2 माइनस टर्म 1 करेंगे. ओके, टर्म 2 माइनस टर्म 1. टर्म 2 क्या है? 7 माइनस 10. सो D इज इक्वल टू माइनस 3. हमारे पास A है, N है, D है. सो 30th टर्म, दैट मीन्स A30. A30 निकालने का फॉर्मूला सेम, A प्लस N माइनस 1D. A is equal to 10. Just put all the values here. 30 minus 1, D is minus 3. So 10 plus 29 into minus 3. 10 plus 9 3s are 27. 2 6 87. So minus 87. So आपको आंसर आएगा minus 77. ऑप्शन सी. ऑप्शन सी आपको करेक्ट आएगा. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. बिट नंबर सेकेंड सब क्वेश्चन. 11th term of the APs. सेम फॉर्मूला, सेम तरीका, सब सेम है. 11th term दिया है, सो 11 क्या है? 11 is N. Second bit, 11th term of AP. AP is equal to minus 3, minus 1.2, 2, so on. So N is equal to 11.
a इज इक्वल टू -3, d इज इक्वल टू हम निकालेंगे -1/2 minus of -3. So this is formula of T2 minus T1. -1/2 plus 3. So LCM निकालेंगे -1 plus 3/2. So that means आपको sorry, this is not 3, 6 आएगा. 6 LCM निकाला है ना. So this is 6. -1 plus 6/2, that means 5/2. D हमें मिला, A है and N है. So directly put the formula of AN. A plus N minus 1 D. So A की जगह पे -3 plus 11 minus 1 D is 5/2. -3 plus 10 into 5/2. -3 plus 5 5s are 25. So answer is 22. देखो ऑप्शन में है क्या? Yes, option B. Okay, option B. Question number 3, first bit. In the following APs, find the missing term in the boxes. Okay. एक 2 दिया है, one is box which is missing, another one is 26. अच्छा, AP में टर्म्स निकालने के लिए आइदर हमें N का वैल्यू, D का वैल्यू, A का वैल्यू एंड कोई एक वैल्यू मिसिंग होगा तो हम निकाल पाएंगे. बट यहाँ पे we don't know the value of D, right? We don't know the value of D and we don't know the value of AN also. So यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? ऑलरेडी आपको बताई थी टर्म्स. फर्स्ट टर्म का फॉर्मूला जो है T1 इज इक्वल टू A, T2 इज इक्वल टू A प्लस D, T3 इज इक्वल टू A प्लस 2D, राइट? ये हमारा फॉर्मूला. दैट मीन फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, ये ऐसी सीरीज में रहता है. सो हमें D कैसे मिलेगा? फर्स्ट टर्म में तो D है ही नहीं, तो हम D निकाल नहीं पाएंगे. सेकेंड टर्म में D है बट हमें वैल्यू नहीं पता है. थर्ड टर्म हम अप्लाई करेंगे. दैट मीन्स 26 इज इक्वल टू A की जगह पे 2 डालो, 2D. सो दिस विल बी योर 26 minus 2 is equal to 2D. 24 is equal to 2D. D is equal to 24/2, that is 12. So D मिल गया. After that we can easily find out term 2. Term 2, that means A plus D. A is 2 plus D is 12, that means 14. आंसर हमारा कितना आएगा? 14 is our answer. So यहाँ पे लिख देती हूँ. ठीक है, 14 आपका आंसर है. चलो नेक्स्ट पे सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है, सेम तरीका है, कोई चेंज नहीं है. सो जस्ट आपको D निकालना है पहले, उसके बाद अप्लाई करना है. अच्छा, सब मैं कर रही हूँ बट बीच बीच में अगर सेम टाइप के हैं सो आप ट्राई खुद से भी कर सकते हो. फर्स्ट वन इज बॉक्स 13, बॉक्स एंड 3. ओके, यहाँ पे देखो A नहीं है हमारे पास. क्या नहीं है? A नहीं है. सो यहाँ पे क्या होगा? आपको दो इक्वेशन आएंगे. 1 2 3 4, 4 टर्म तक है हमारे पास. टर्म 1 इज इक्वल टू A, टर्म 2 इज इक्वल टू A प्लस D होता है, टर्म 3 इज इक्वल टू A प्लस 2D होता है, एंड टर्म 4 इज इक्वल टू A प्लस 3D होता है, राइट? सो टर्म, सेकेंड टर्म एंड फोर्थ टर्म हमारे पास है. दैट मीन्स ये और ये A प्लस D एंड A प्लस 3D, ये दोनों हमारे पास है. A प्लस D 13 है, A प्लस 3D 3 है. सो ये देखो, दिस इज वन इक्वेशन एंड दिस इज सेकेंड इक्वेशन. सो दोनों इक्वेशन का हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन करेंगे. सो ये भी माइनस, ये भी माइनस. -2D इज इक्वल टू 10, D इज इक्वल टू -5. ओके, D का वैल्यू हमें पता चला -5.
अभी डी का वैल्यू पता चला, ये हम लोग इक्वेशन 1 में डालेंगे। तो यहाँ पे एक लाइन बना देती हूँ, a प्लस डी इज इक्वल टू 13, सो a इज प्लस -5 इज इक्वल टू 13, a इज इक्वल टू 13, ये -5 प्लस 5 होगा, सो 18, a का वैल्यू 18, दैट मीन्स फर्स्ट टर्म 18 है, ये 18 है। अभी ये कैसे निकलेगा, दिस इज द थर्ड टर्म, थर्ड टर्म का क्या है, a प्लस 2d, a प्लस 2d, दैट मीन्स 18 प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू कितना है हमने निकाला है -5, so this will be your 18 minus 10, so answer is 8, this term is 8, थर्ड टर्म कितना है वैल्यू 8 है, ठीक है। सो सेम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, सिंपल है ना, एल्गो एपी का वही है, आपको थोड़ा वो एन और ए एन में कंफ्यूजन दूर हो जाएगा ना, सबसे इजी लेसन है, कुछ नहीं है इसमें, फॉर्मूला याद रखना है, सिर्फ डालते जाना है। कुछ कुछ बच्चों का क्या होता है कि एन और ए एन में कंफ्यूजन रहता है, एन क्या है ए एन क्या है, दोनों तो सेम है, एन इज द टर्म नंबर ऑफ टर्म्स, बट ए एन इज द nth टर्म, जो नंबर ऑफ टर्म्स है उसका टर्म है ए एन। सेम क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन है, 5 box, again box, this will be direct, I am writing here 9 to the 18, 18 plus 19 upon 2, मैंने डायरेक्टली उसे चेंज कर दिया। सेम वे वी डोंट नो डी, सो दो इक्वेशन आएंगे, नहीं बट वी नो ए, सो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, टर्म 4, टर्म 4 का फॉर्मूला a प्लस 3d, दिस इज a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, सो a प्लस 3d इज इक्वल टू 19 अपन 2, a की जगह पे 5 प्लस 3d इज इक्वल टू 19 अपन 2, 3d इज इक्वल टू 19 अपन 2 माइनस 5, so 19 minus 10 upon 2, that is 9 upon 2, okay, 3d 9 upon 2 है, d कितना है, d is equal to 9 upon 2 into 3, so simplify हो जाएगा, 3 upon 2 आ जाएगा, डन। नाउ सेकेंड टर्म के लिए क्या है, टर्म 2 is equal to a plus d, 5 plus 3 upon 2, so 13 upon 2 आएगा आपका आंसर एक, ओके, 13 अपन 2 आएगा एक, और इसे अगर होल नंबर में लिखेंगे 6 होल 1 अपन 2, सॉरी मिक्स्ड, ये है इम्प्रॉपर, सो उसे अगर हम लोग होल करके लिखेंगे 6 होल 1 अपन 2। नाउ टर्म 3 इज इक्वल टू a प्लस 2d, सेम वे 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 3 अपन 2, सिंप्लीफाई हो जाएगा, 2 and 2 3 रहेगा, 5 प्लस 3 8, सो एक तो आपका 8 मिला, 8 इज थर्ड टर्म, दिस इज 8 एंड दिस इज 6 होल 1 अपन 2, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 4 पे जाएंगे, सेम ही दिया है, लास्ट टर्म दिया है, सो डी निकालना है आपको, बाकी के टर्म्स निकालना है। फर्स्ट टर्म ऑलरेडी a इज गिवन -4, डी नहीं है हमारे पास, question number 4, a is given -4, so this is which term, term 1, term 2, term 3, term 4, term 5, term 6, t6 is equal to क्या होता है, a plus 5d, a plus 5d is equal to 6, a की जगह पे -4 plus 5d is equal to 6, 5d is equal to -4, RHS में जाके +4, so 6 plus 4 10, d is equal to 10 upon 5, that is 2, d का वैल्यू 2 निकला। सो टर्म 2 का फॉर्मूला a plus d, so -4 plus 2, that is -2 आया, ये आ गया टर्म 2 -2। नाउ टर्म 3, -2 में वी कैन ऐड 2 और एल्स आपका फॉर्मूला भी है, टर्म 3 कैसे निकलेगा, a plus 2d, so -4 plus 2 into d plus 4, that means 0, तो ये आपका 0 आ जाएगा। टर्म 4 में जो 0 है ना, डिफरेंस d सेम रहता है, तो 0 प्लस आप 2 भी कर पाओगे,
तो यहाँ पे चलो सेम फॉर्मूला लिख देती हूँ, आपको कंफ्यूजन ना हो। -4 + 3 × d, 3 × d मीन्स 0, दैट मीन्स -4 करेक्ट है या कहीं पे कुछ गड़बड़ हुआ है? 0 आया, 0 के बाद -4 2 सॉरी 2 × 0, 3 × 0 नहीं, जस्ट मिनट, यहाँ पे 3 × 2 होना चाहिए, 3 × 2, so -4 + 6 = 2, so this term also 2. Now T5, a + 4d, so a is -4 + 4 × 2, -4 + 8, so 4, ये 4। अभी देखो हर एक का डिफरेंस, जो कॉमन डिफरेंस है 2 2 2 2 होकर है, ठीक है। सो कॉमन डिफरेंस नहीं है तो इक्वेशन फॉर्म करना पड़ेगा। 2 नंबर अगर दिया है तो कॉमन डिफरेंस, एंड दूसरा कुछ मिसिंग है, जैसे कि n मिसिंग हो, a मिसिंग हो, तो दोनों मिल जाएंगे, 2 इक्वेशन बनेंगे तो, ठीक है। नेक्स्ट वन, फर्स्ट टर्म ही गायब है, देखो यहाँ पे 2 इक्वेशन आपको बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट वन यहाँ पे कर रही हूँ, फर्स्ट इक्वेशन गायब है, सेकंड इक्वेशन है, तो टर्म 2 = a + d = 38 है, and this is first term, second term, third, fourth, fifth, sixth. T6, that means a + 5d = -22, right? -22, so क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ये भी माइनस, ये प्लस हो जाएगा, so -4d = 60, d = -15, right? d = -15। अभी हमें क्या निकालना है, टर्म 1। अच्छा, d का वैल्यू अगर आया है, d का वैल्यू हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्वेशन 1 में डाल सकते हैं, a + d = 38, so a + -15 = 38, a, ये -15 उधर जाके +15, so 38 + 15, so you will get 53, ठीक है। a का वैल्यू 53 है, a मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म, ये हो गया 53। नाउ टर्म 3, टर्म 3 में एक तो फॉर्मूला आप डाल सकते हो कि a + 4d, नहीं 2d, a + 2d, और एल्स क्या करोगे, आपके पास अगर प्रीवियस टर्म है तो उस टर्म में डिफरेंस ऐड करते जाओ, तो 38 में टर्म 3 यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो, ये एक हो गया, और एक 38 + -15, so the answer you will get is 23, 23, और एल्स ये फॉर्मूला, जैसे कि आपका a 53 है, 53 प्लस करोगे 2 × d, नेक्स्ट ये आ गया आपका 23, टर्म 4, T4 फॉर्मूला a + 3d, बट फॉर्मूला भूल मत जाना, अगर आपको प्रीवियस टर्म्स भी नहीं होंगे, इवन दो फर्स्ट टर्म नहीं होगा, तो आपको इक्वेशन फॉर्म करने के लिए ये फॉर्मूला यूज होगा, T4 = a + 3d, और देखो यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, और T3 + d, सो T3 कितना है, 23 + -15, so आंसर विल बी योर 8, ओके, आंसर आपका आ जाएगा 8, ये सेकेंड वन, फोर्थ आ गया। नाउ टर्म 5, फॉर्मूला इज a + 4d, और टर्म 4 + d, टर्म 4 कितना आया, 8 + -15, सो आंसर आपका -7 आएगा, ये आएगा आपका -7। क्वेश्चन नंबर 4, विच टर्म ऑफ AP 3 8 13 18 is 78? यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है विच टर्म, मतलब द नंबर ऑफ टर्म, द नंबर ऑफ टर्म के लिए क्या मिसिंग है, n मिसिंग है यहाँ पे, and an is given here 78, this one, okay, और a is given here 3, d =
8 minus 3, you can do term 2 minus term 1, that means 8 minus 3, 5. Okay, 5, 3, 78, and n is missing. Directly we will put the formula an is equal to a plus n minus 1d. an आपको दिया है 78, a is equal to 3 plus n is missing, n minus 1 into d is 5. So 78 minus 3 is equal to n minus 1 multiplied by 5. This is 75 is equal to n minus 1. 75 अपन 5 करेंगे, n minus 1, so ये आपको आएगा 515. ये -1 इधर आके +1 हो जाएगा, so 16. n is equal to 16. That means which term? 16th term. Okay, 16th term is the answer of question number 4. चलो क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे. फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन विच द फॉलोइंग एपी. सेम क्वेश्चन है चिल्ड्रन, कुछ भी डिफरेंस नहीं है उसमें. यहाँ पे भी आपको ए एन इज गिवन, n is missing, just you need to find out n. So an is equal to a plus n minus 1d. So directly I'm putting the formula here. An is given 205 is equal to 205 is equal to a कितना दिया है 7 plus n is missing, so write down here n only. d कितना है, अभी 13 से 7 माइनस करो, कितना आएगा 6 आएगा, क्योंकि सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म और इस थर्ड टर्म से सेकेंड टर्म भी आप माइनस कर पाओगे. सो 205 minus 7 is equal to n minus 1 multiplied by 6. So this will be your 891, right? 198 upon 6 is equal to n minus 1. चलो सिंप्लीफाई करेंगे. 6 3s are 33 is equal to n minus 1. n 33 plus 1 is equal to n, that means 34. n का वैल्यू क्या है 34. that means ये जो 205 है, this is the 34th term. ओके, ये जो है 34th टर्म है. चलो बिट 2 करेंगे. सेम an is equal to a plus n minus 1d. an का वैल्यू इज गिवन -47. a is here 18 plus n minus 1 d. d आपको आएगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा. d आपको -5/8 आएगा शायद, यहाँ पे मैं करती हूँ. This will be your 15 2s are 30, 31/2 minus 18. So 31 minus 36/2. So -5/2. Okay, d कितना आया -5/2. So -47 minus 18 is equal to n minus 1 multiplied by -5/2. This will be your -65 multiplied by 2/-5. मैंने डायरेक्टली यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है चिल्ड्रन. सो कैसे, चलो ये मैं इरेज कर देती हूँ. d का क्या है. ओके, नेक्स्ट स्टेप आपका 513, राइट. 5 1s are 5, 5 3s are 15. yes. So माइनस माइनस भी कट हो गया. 13 multiplied by 2 is equal to n minus 1. This is 26 minus 1 plus 1 हो जाएगा. So 27 is equal to n. So how which term? 27th term. ये हुआ आपका 27th term. Okay. an is given but n missing था यहाँ पे. Question number 6. Check whether -150 is the term of the AP. AP क्या दिया है यहाँ पे 11, 8, 5 and 2. So on. Question दिया है ये AP का 150 एक टर्म है क्या. ठीक है. So उसे चेक करने के लिए फर्स्ट वी विल सी, यहाँ पे एक कॉन्ट्ररी लेते हैं पहले. ठीक है.
पहले a तो निकाल देते हैं, a is 11, d कितना है 8 minus 11 करेंगे, 8 minus 11 that is -3. Okay, so we don't know we don't know the n, but assumption करेंगे let an is equal to -150. let just assumption करेंगे. Okay, so nth term हमें नहीं पता है, हम फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे. an is equal to a plus n minus 1d. so an के लिए अभी हमने क्या assumption किया था 150, a की जगह पे डालेंगे 11, n minus 1, d की जगह पे -3. so this will be your -150 minus 11 is equal to n minus 1 multiplied by -3. so minus 161 is equal to n minus 1, ये यहीं पे -3 कर देती हूँ. सो ये आपको कितना आ रहा है, सिंप्लीफाई हो रहा है क्या, -161, यस. सो ये आपको सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, 3 5s are 15. so 161 upon 3 plus 1 is equal to n. then n का वैल्यू क्या आएगा, 161 plus 3 upon 3 that is 164 upon 3. okay, but n should be a positive integer. n जो है always क्या होना चाहिए, positive integer, right? it should be a positive integer. so our assumption was wrong, and so 1 minus 150th is not a term of this AP. आया समझ में, n should be a positive integer. अभी 164 अपन 3 टर्म क्या है, टर्म कैसे होता है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, सो ऑन, ऐसे होना चाहिए. बट n हमारा क्या आया है 164 अपन 3, ऐसा वाला टर्म थोड़ी ना होगा, नो. सो आवर एजम्पशन जो था कि an इज इक्वल टू -150 वो रॉन्ग है. दैट मीन्स -150 does not come in this AP, or -50 is not a term of the AP 11, 8, 5 and 2. okay, just contrary करना है, पहले assume करना है, उसके बाद की no, our assumption was wrong, just यही उनको show करना है. so it does not come. done. Question number 7, find the 31st term. 31st term मतलब ये n is equal to 31st here. okay, ये हमें पता चल गया. of an AP whose 11th term is 38 and 16th term is 73. okay, यहाँ पे आपको ना A दिया है ना D दिया है, बट दिया क्या है 11th term. 11th term मतलब क्या होता है बेटा, A11. A11 का फॉर्मूला क्या होता है, A plus 10D. A plus 10D is equal to 38. कैसे हुआ मैम, ये कैसे हुआ, फर्स्ट टर्म को हम A लेते हैं, ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म को क्या लेते हैं A plus D लेते हैं, थर्ड टर्म को क्या लेते हैं A plus 2D लेते हैं. जब जो नंबर टर्म में है उससे एक छोटा जाता है फॉर्मूला में, ठीक है. यहाँ पे क्योंकि D नहीं रहता है ना, फर्स्ट टर्म में D नहीं रहता है, उसके बाद D ऐड होता है, उसके बाद 2D ऐड होता है. इन द सेम वे 11 अगर दिया है सो इट विल बी 10D. यहाँ पे थर्ड टर्म में A plus 2D जैसे हुआ था, यहाँ पे 11 टर्म में A plus 10D आएगा. सो ये एक इक्वेशन हमें मिल गया. दूसरा इक्वेशन दिया है एंड द 16th टर्म इज 73. चलो ये मैं इरेज कर देती हूँ क्योंकि ये स्पेस हमें चाहिए फिर से. A 16th मतलब A तो लिखेंगे प्लस यहाँ पे कितना लिखेंगे 16 अगर दिया है, दिस विल बी योर 15D is equal to 73. दिस इज इक्वेशन 2. सो इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्शन करेंगे. 10 minus 15 minus 5D is equal to आपको ये आएगा 35.
35 था, यस 35 माइनस 35. सो डी का वैल्यू क्या है चिल्ड्रन? 7. एक हमें मिल गया. सो डी का वैल्यू मिला है तो हम क्या करेंगे, ये ए में पुट करेंगे. चलो यही तो मैं करती हूँ. a प्लस 10d इज इक्वल टू 38 था, तो a के जगह पे a रहेगा. 10d मतलब प्लस 10 इंटू 7, डी का वैल्यू 7 है, सो 70 इज इक्वल टू 38. a इज इक्वल टू 38 माइनस 70. सो ये आंसर विल बी 32. 32 ना, माइनस 32. ओके, ए का वैल्यू मिला. अभी हमारे पास ए का वैल्यू है, डी का वैल्यू है, तो 31st टर्म निकाल पाएंगे. A31 इज इक्वल टू A31 का A प्लस 30D डाल दिया. A प्लस 30D, क्योंकि 31 है तो यहाँ पे 30 आ सकता है. अच्छा, यहाँ पे आप एक चीज दूसरा भी बता सकते हो. सो मैम यहाँ पे हम लोग ये फॉर्मूला क्यों यूज नहीं कर रहे हैं? यहाँ पे ये फॉर्मूला भी आप यूज कर पाओगे, क्योंकि ये अगर करोगे, देखो n कितना है बेटा यहाँ पे 31. 31 माइनस 1 कितना होगा? 30 होता है. तो सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है. जस्ट हम लोग पुट करेंगे माइनस 32 प्लस 30 इंटू 7. सो माइनस 32 प्लस 210, 178 इज द आंसर. इसका आंसर क्या है? 178. So 31 term of an AP is 178. Question number 8. An AP consists 50 terms. 50 terms means 50 terms n. 50 is equal to n, of which third term is 12. Acha. Third term is 12. That means A3 is 12, so A plus 2D is equal to 12. And the last term is 106. Last term मतलब क्या है? यहाँ पे ऑलरेडी पहले दिया है AP कंसिस्ट कितने टर्म्स? 50 टर्म्स. दैट मीन्स लास्ट टर्म इज 50. सो A50 is equal to A49D is equal to 106. अगेन सेम सब्ट्रैक्शन करना है. ओके, माइनस 47D इज इक्वल टू, आपको ये सब्ट्रैक्शन करेंगे तो कितना आएगा? 94, राइट? 94 माइनस 94. सो डी कितना आएगा? 94 अपन 47. सो आंसर इज 2. डी मिल गया. सो डी मिला तो हमें इक्वेशन में पुट करना है. A plus 2D is equal to 12. A plus 2 into 2, 4 is equal to 12. A is equal to 12 minus 4, 8. A भी मिल गया. अभी डायरेक्टली हमें फॉर्मूला में जाना है. Find the 29th term. That means A29. So A plus क्या लिखना है? n minus 1D. Instead of that, directly you can write A plus 28D. बिकॉज आपको जब n पता है ना बेटा, डायरेक्टली ये भी यूज कर पाओगे आप. ठीक है, n जब पता नहीं है तब ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे. 8 प्लस 28 इंटू 2, 8 प्लस दिस विल बी योर 56. सो 64 इज योर आंसर. 8 का 64 आपका आंसर है. ठीक है, इजी है. एक बार फर्स्ट टाइम करते वक्त थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, बट आप सेकेंड टाइम जब करोगे इससे ज्यादा इजी और कोई लेसन नहीं लगेगा. सो चिल्ड्रन, मैथ्स एक ऐसी चीज है, प्लीज प्रैक्टिस एटलीस्ट 2 to 3 टाइम सेम क्वेश्चन, तब जाके कैसे आपको फॉर्मूलाज भी याद रह जाएंगे और इजी भी लगेगा लेसन. Question number 9. If the third and the ninth term of an AP are 4 and minus 8 respectively. चलो फिर से लिखते हैं. A3 is equal to A plus 2D is equal to 4 given है, and A9 is equal to A plus 8D is equal to minus 8. So equation subtract करेंगे.
So here minus 6d is equal to 12. d is equal to minus 2. d minus 2 है तो हम लोग इसे, this is equation 1, equation 2, just put the value of d in the equation 1. a plus 2d is equal to 4. a plus 2 into minus 2, minus 4 is equal to 4. a is equal to minus 4, 4 के साथ प्लस होगा 8. मिल गया, d मिल गया, a मिल गया. अभी वो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है which term of this AP is 0. That means an is 0. n का वैल्यू हमें पता नहीं है. So यहाँ पे अभी क्या करेंगे, an is equal to a plus n minus 1d. ये फॉर्मूला भी यहाँ पे अप्लाई होगा क्योंकि n का वैल्यू हमें फाइंड करना है. an 0 है, डाल दिया. a का वैल्यू 8 प्लस n minus 1, d का वैल्यू minus 2. So this will be your minus 8, 0 से minus 8, or is equal to n minus 1 minus 2. So minus 8 upon minus 2 is equal to n minus 1. This will be a 4 minus 1 plus हो जाएगा. So which number of term? n is equal to 5. That means fifth term. आपका जो फिफ्थ टर्म है वहां पे आपको AP 0 आएगा. ये फर्स्ट टर्म आपको 8 है, सेकेंड टर्म हमने नहीं, अभी वैसे ही D तो दिया है, वैसे करेंगे तो आपको nth टर्म जो है आपको 0 मिलेगा. हाँ सॉरी, फिफ्थ टर्म आपको 0 मिलेगा. ठीक है, डन. सो इन दिस सेशन वी आर ओनली, I just solve up to 9. ठीक है, 9th नंबर ऑफ क्वेश्चन. बिकॉज अगर 20 तक मैं सॉल्व करूंगी वीडियो बहुत ही लेंदी हो जाएगा. बट चिल्ड्रन, जिस दिन जो आ रहा है वीडियो का, अगर इफ यू विल प्रैक्टिस अकॉर्डिंगली, सो डेफिनेटली आपका तो सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगा. क्योंकि एक ही दिन में पूरा करना मतलब डिफिकल्ट हो जाता है ना बेटा. सो धीरे धीरे हम लोग कर पाएंगे. So in tomorrow's session we will solve from question number 10 to 20. So 2 exercise complete हो जाएगा. थर्ड एक्सरसाइज पे जब जाएंगे ओनली आधा ही क्वेश्चंस है. So ये साल जो देंगे अपियर करेंगे उन लोगों के लिए जितना है उतना ही रिफर करो, बाकी का रिफर मत करो क्योंकि वो तो ओमिटेड पोर्शन है. ओके, सो थैंक यू. एंड वन मोर थिंग, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है बेटा, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल PhD Digital Maths. So thank you very much for your support, for your love. So see you in the next session. Bye bye.